Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is D and F block element. Now, why this is called as D and F block element? देखो बेटा, in our periodic table, this is S block and this is P block element, and in between the S and P, D block element is present. Okay, and at the last F block elements are present here. Okay, then this is the D block element. Why this is called as D block element? Because they are those elements in which the last electrons enter the D subshell. So this is called as D block element. And this D block element that start from the group number 3 to 12. Okay, means the elements of periodic table belonging to the group number 3 to 12, this is called as D block element. Why this is called as D block elements? Because in these elements last electrons enter in the D subshell or D orbital, so this is called as the D block element. The D block elements that lies in between the S and P block elements in the long form of periodic table. Okay, बीच में लाई करता है ये. Now next is transition element. D block element is also called as transition elements. क्यों बोलते हैं बेटा transition elements? Because transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbital in its ground state or any one of the oxidation state. Are transition elements that should have partially filled n-1 d orbital. Okay, why this is called as D block elements is also called as transition elements. तो बेटा क्यों बोलते हैं? Because they shows the properties that are transitional between the S and P block element. S और P के बीच में जो होता है D block होता है, क्योंकि ये S और P block elements के बीच की properties को show करता है. That's why this is called as the transition elements. अब transition elements कौन से होते हैं? वो elements जिनके अंदर incompletely filled D orbital होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसको 3D सीरीज़ बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ 4D सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ 5D सीरीज़ एंड फोर्थ ट्रांजिशन स्टेट दैट इज़ 6D सीरीज़. ओके, तो ये आपकी 4 ट्रांजिशन सीरीज़ प्रेजेंट होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ आर D block elements and transition element different कैसे बेटा? ये कहते हैं all D block elements are not the transition elements but all the transition elements are the D block elements. ओके, अब रीज़न क्या है कि सारे के सारे जो D block elements हैं वो transition elements नहीं है. क्यों नहीं है? Because D block elements like zinc have the fully filled D10 configuration in their ground state as well as their common oxidation state. इसमें बेटा ये fully filled होते हैं zinc 3D10 4s2. This is fully filled configuration. Okay, that's why जितने भी D block elements इनको हम transition elements नहीं बोलेंगे, which is not according to the definition of transition element. ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट तो वो होते हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, बट जिंक क्या है? फुल्ली फिल्ड है. ठीक है, तो इस वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट है बट नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. Which of the D block elements may not be regarded as the transition elements? किनको नहीं बोलते बेटा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 ऐसे हैं जिनमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते इन्हें हम. ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन होती है कि उनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Why zinc, cadmium and mercury are not considered as transition element? Because they have fully filled d orbital. Now, why scandium is transition element but zinc is not? Because in case of scandium, 3d1 4s2 configuration is here, and here the d orbital is incompletely filled, so that's why it is transition element. But in case of zinc, d orbital is fully filled in the ground state as well as their common oxidation state, that's why zinc is not transition element. Okay, next is copper atoms has completely filled d orbitals in its ground state, yet it is a transition element. आप देखो बेटा, कॉपर में क्या होता है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, फिर भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है. बट कॉपर में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है एंड इट शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज द वेरी कॉमन इन द केस ऑफ कॉपर, एंड हेयर इट इज D39 configuration, means this is incompletely filled configuration, that's why copper is a transition element. Okay, now next is silver has completely filled d orbitals in its ground state, yet it is also called as transition element because silver shows the +2 oxidation state in its ground state, and it has incompletely filled d orbitals, that's why it shows the transition elements. Why every name transition given to the elements of d block? क्यों नाम दिया गया? Because all the transition elements that all have the incompletely filled d orbitals, that's why transition name given to the elements of d block element. Okay students, and one more reason is that the transition given to the elements of d block elements because they are present in between the s and p block element. Okay, so transition name is given here. Now next is melting point and boiling point. These are some general characteristics of transition metals elements. Okay, देखो बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड d orbitals it shows the very high melting point and boiling point. Second is involvement of greater number of electrons from the n-1d electrons in addition to ns electrons, so they form the interatomic metallic bonding. Okay, so because of the strong interatomic bonding, the transition elements that have the high melting point and boiling point. Okay, but on moving along the period from left to right, the melting point of these elements, these metals, that first increases to maximum and then decreases regularly towards the end of the period, like this. पहले इंक्रीज होगा बेटा, फिर थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा रेगुलरली, और फिर ऐसे कांस्टेंट होता चला जाएगा. ओके, अब क्यों होता है? बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इट मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म द मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस. ठीक है, so in the first transition series after chromium, the number of unpaired electrons decreases here, so the melting point decreases. But manganese shows anomalous melting point and boiling point because it form a stable configuration. manganese की configuration क्या होती है? 3d5 4s2. okay, so the electrons are held tightly by the nucleus so that the delocalization is less, so the metallic bond is much weaker than the other elements. Okay, now next is the melting point of these metals rise to maximum at d5 except from anomalous values of manganese and
technetium and fall irregularly as the atomic number increases. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज 4D सीरीज एंड 5D सीरीज मेटल्स। देखो बेटा, जो स्ट्रेंथ होती है इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दैट आर रफली रिलेटेड टू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पे डिपेंड होती है। तो इन द बिगिनिंग द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज टिल द मिडल ऑफ द पीरियड and which increase the strength of interparticle bond. But the pairing of electrons in d orbitals that occurs, okay, and the number of half-filled orbitals that will be decreases, so the melting point decreases. Okay, so this is the region of decreasing melting point, means the melting point that depend upon the metallic and covalent bond, and this depend upon the number of unpaired electrons. Now the next property is enthalpy of atomization of the transition elements. The first transition enthalpy of the first ionization enthalpy of transition elements that are higher than the s block element, but this is lower than the p block element. Now in this transition series, the ionization enthalpy of the that will be increases with increase the atomic number. तो देखो बेटा क्यों increase होती है, the ionization enthalpy is increased due to increase the nuclear charge. इसके कुछ रीज़न है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस with increase the atomic number, so it tends to attract the electron cloud with a greater force. Okay, but if the atomic number increases, जैसे जैसे नीचे जाओगे atomic number क्या होगा, increase होगा, that provides the shielding effect and it shields the outer s electrons from the inward nuclear pull. So the effective nuclear charge that will be increases, and screening effect is also increases, but it is opposed to each other. Okay, now the increase in ionization enthalpy along the series of transition element that is very small. The अब आता है irregular variation. जैसे irregular variation क्यों आता है बीच बीच में, irregular variation of first and second ionization enthalpy in the first transition series is due to the stability of the different 3D configuration. ठीक है, जैसे क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम जो होता है that has very low first ionization enthalpy because the loss of one electrons it give the stable 3D 5 configuration. Okay, जिंक है Zn very high first ionization enthalpy शो करता है because the electrons has to be removed from the 4s orbital and it will form the 3d10 4s2 configuration. 3d10 4s2 configuration, this will be formed. Okay, now the next trend is the first ionization enthalpy of 5D transition series. 5D में क्या होगा देखो बेटा, that are much higher than 3D and 4D. ये रीज़न क्या है, 5D की सबसे ज़्यादा है बिकॉज इसमें रीजन आप दोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ग्रेटर होता है, दैट इज़ एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, show the ineffective shielding of nucleus by the 4f electrons. और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि जो शील्डिंग है मीन्स इनइफेक्टिव शील्डिंग बन जाएगी न्यूक्लियस की, किसके द्वारा, बाय द 4f इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, अब बेटा यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगर इज द इंटर-एटॉमिक अट्रैक्शन. So stronger bonding between the atoms that shows the higher enthalpy of atomization. Okay,
अब इसमें बेटा जो मेटल्स हैं सेकंड और थर्ड सीरीज़ की, उनमें ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. देखो बेटा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दैट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड टिल मिडल इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट, बट इट इज़ लार्जर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट से लार्ज होती है. So in the transition series, as the atomic number increases, atomic radii first decreases till middle and it become almost constant and then increases towards the end of the period. Okay, अब reason क्या है कि why in the beginning atomic radii decreases? क्योंकि बेटा फर्स्ट रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, due to increase in the effective nuclear charge with the increase in atomic number. Okay, means with the increase in the number of electrons in n minus d subshell, then screening effect of these d electrons on the outermost ns electrons also increases. So this increased screening effect that counterbalance the effect of increased nuclear charge, so the atomic radii that remain constant. Okay, in the middle of the series, and after that it increases. increase कैसे होती है बेटा कि in this increase in atomic radii is due to the electron repulsion, means the pairing of electrons in the d orbitals of penultimate shells that will be occur after the d subshell is half filled. Means this repulsive interaction between the paired electrons in the d orbitals that become dominate towards the end of the series. So it causes the expansion of electron cloud and increase the atomic size. Okay, so this is the main answer. अब इसमें गिवन है बेटा, देखो क्या है कि न्यू इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है एंड शील्डिंग इफेक्ट जो होता है डी इलेक्ट्रॉन्स का वो कभी भी इफेक्टिव शो नहीं करता. सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, सो द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये बेटा सेम रीजन है जो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो वो पार्शली कैंसिल करेगा किसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट को. ठीक है, तो ये काउंटर बैलेंस करेंगे. बट व्हेन द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट दैट बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस है, तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है बेटा, फिर इरेगुलरली बाद में क्या होती है, एट द टुवार्ड्स द एंड क्या होती है, इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियाई. तो वाई, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है डी ऑर्बिटल्स के अंदर and this repulsive interaction between the paired electrons that causes the increase in atomic and ionic radii. ओके, तो ये रीजन है आपका, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है. मीन्स पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट आती है, एंड आफ्टर दैट फिर इंक्रीज होती है, सॉरी फिर इंक्रीज हो जाती है. ओके, दिस इज़ द ग्राफ बेटा. ये स्कैंडियम वगैरह टाइटेनियम दिया हुआ है, तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ है. तो देखो पहले आपकी डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, और फिर इंक्रीज हो जाती है. तो 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ की ऑलमोस्ट इक्वल होती है एटॉमिक रेडियाई. ये लाइन आपस में देखो टच कर रही है इधर. एंड 3D सीरीज़ की जो होती है वो लेस होती है. ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा कि जो फर्स्ट 3D सीरीज़ की 3D से जब हम 4D सीरीज़ में जाते हैं तो इसमें एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, बट द रेडियाई ऑफ थर्ड 5D सीरीज़ दैट आर वर्चुअली सेम एज दैट ऑफ 4D. तो ऐसा क्या होता है, देखो क्योंकि बेटा जो 5D और 4D सीरीज होते हैं उनके अंदर क्या आता है, F ऑर्बिटल आ जाता है, और 5D सीरीज़ को भरने से पहले हमें कौन सा फिल करना पड़ेगा, पहले 4F फिल करना पड़ेगा.
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ना वो लेंथेनम से डिक्रीज हो जाती है, लेंथेनम टू ल्यूटेनियम डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 4f, क्योंकि 4f सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट शो करता है और इसकी वजह से क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइड, इसी प्रोसेस को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो क्या बताता है, दैट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ oxidation state. Okay, although the first ionization enthalpy increases, the magnitude of increase in second and third ionization enthalpy for successive elements that is much higher. तो पहले बेटा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 1, ऐसे बनती है। ओके, अब इसके पीछे रीज़न क्या है देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ क्यों होती है, शुरू में इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। बट एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट इन्वॉल्व्स द इन फीलिंग ऑफ n-1d orbitals, so the effect of increase in nuclear charge is partially cancelled by the increase in screening effect. Okay, means nuclear charge का इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज़ वेरी स्मॉल, थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। तो 5d सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 4d एंड फिर 3d की, क्योंकि 5d सीरीज़ में क्या होता है 4f इलेक्ट्रॉन्स आता है पहले फिल होता है, उसके बाद ही 5d फिल होता है, और 4f जो होता है इलेक्ट्रॉन्स दैट इनइफेक्टिव शील्डिंग शो करता है, मीन्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इसके एटॉमिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। ओके, नाउ the next property is oxidation state. The elements which give the greatest number of oxidation state that occur in and near the middle of the series. जैसे मैग्नीज है बेटा, मैग्नीज +2 से +7 शो करता है। Elements in the beginning of the series that shows the fewer oxidation state means जिसमें क्या होता है स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे लूज भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये कुछ ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एट द एंड ऑफ द सीरीज शोज फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनके अंदर टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, सो दे हैव फ्यू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स विच कैन बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। ओके, अब जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट लो शो करते हैं उनका नेचर कोवेलेंट होता है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दैट आर आयनिक इन नेचर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स। अब ग्रुप 6 है बेटा, मोलिब्डेनम 6, टंगस्टन 6 दैट आर मोर स्टेबल देन द क्रोमियम 6। ओके, अब क्रोमियम 6 दैट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, +8 रुदीनियम की होती है एंड ऑस्मियम होता है। ठीक है, अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट हैव लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। मीन्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें पाया जाता है जिनमें क्या होता है सिग्मा बॉन्डिंग बनती है। जैसे बेटा मेटल कार्बोनिल होते हैं NiCO4, FeCO का 5। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है निकल और आयरन की वो क्या होती है 0, बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, उतना ही क्या होगा, मोर स्टेबल इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उतनी ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी एक्वस सॉल्यूशन में। बेटा दिस इज़ द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो वेनेडियम दैट इज़ -1.18, क्रोमियम 0.91, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। कॉपर की वैल्यू प्लस में है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो वैल्यूज़ कभी भी रेगुलर नहीं होती हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कर देते हैं। ठीक है, या फिर सब्लिमेशन एंथैल्पीज होती है जो हमेशा लेस होती है फॉर मैग्नीज और वेनेडियम के लिए। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। अब देखो बेटा, ड्यू टू पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। जो लेस नेगेटिव ई नोड वैल्यूज़ होती है अक्रॉस अ सीरीज, वो हमेशा किससे रिलेट होती है, इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब मैग्नीज, निकल और जिंक, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। देखो बेटा, अब रीज़न यहाँ पे है कि जो स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड डी सब शेल की Mn+2 में प्रेजेंट होती है। जिंक में क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करती हैं ई नोड वैल्यूज़ से। ठीक है, इसलिए निकल की जो ई नोड वैल्यूज़ होती है वो क्या शो करती है, हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लो वैल्यू ऑफ scandium that reflect the stability of scandium+3 which has a noble gas configuration. The highest value of for zinc, that is due to the removal of electrons from the stable D10 configuration of Zn2+. So high value of manganese that shows that D5 configuration which is particularly stable, whereas the iron have low value which shows extra stability of Fe+3. Okay, now next is chemical reactivity. Transition metals that are widely vary in their chemical reactivity. Okay, देखो बेटा कैसे कि जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, सिर्फ कॉपर को छोड़ के, दैट आर मोर रिएक्टिव एंड दे आर ऑक्सीडाइज बाय द 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस. ओके, now the next property, that is magnetic properties. Transition metals contains the unpaired electrons, so they are paramagnetic. Paramagnetic behavior increases with increase the number of unpaired electrons. Means जितने number of unpaired electrons होंगे उतना ही paramagnetic nature ज़्यादा होगा. Paramagnetism that is expressed in terms of magnetic moment, because magnetic moment is related to the number of unpaired electrons. Magnetic moment calculated from the spin only formula, and this is the formula mu is equal to root of n+2 bm. bm क्या है बेटा, इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन. ओके, अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, mu इज इक्वल टू n+2. तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, n क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसकी यूनिट होती है bm, बोहर मैग्नेटॉन. bm की वैल्यू होती है 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 एयर्स या गर्ल्स. अब जो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटन होता है. दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट शो होता है. Now the next property is formation of colored ions. When an electron from lower energy d orbitals that is excited to the higher energy d orbitals,
then the energy of excitation that corresponds to the frequency of the light absorbed. Okay, so this frequency that lie in the visible region, and the color observed corresponding to the complementary color of the light absorbed. Okay, now the frequency of light absorbed is determined by the nature of ligands. Okay, why the transition elements in solution shows colored? Because due to the partial absorption of visible light. मेन रीजन आपको ये बताना है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट. ओके, अब एब्जॉर्ब लाइट क्या करती है, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जाते हैं और डी सबशेल के अंदर ही जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है डी सबशेल से डी सबशेल के अंदर ही, डी से डी शेल में ही जाते हैं. तो इसलिए इनको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन. इनको क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं. ये क्या होता है, जो डी डी ट्रांजिशन होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट इन द डी ऑर्बिटल्स. ओके, सो दे अपीयर कलर्ड, सो कलर फॉर्म में आते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई जिंक एंड कैडमियम 2+ दैट शोज कलरलेस, बिकॉज all the d orbitals in the zinc and cadmium that are fully filled. Okay, टाइटेनियम प्लस 4 में क्या होता है, बिकॉज ऑल द d orbitals that are vacant, ये vacant होते हैं. ओके, नेक्स्ट, इनके अंदर कोई भी डी डी ट्रांजिशन शो नहीं होती, इसलिए दे डोंट एब्जॉर्ब रेडिएशन, ये रेडिएशन का एब्जॉर्ब नहीं करते. सो ऑल दीज आर कलरलेस. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. Thank you students.